Hello students of class 5th. Today we are going to study EVS in this chapter number 5, Animals and their senses. We have to study chapter number 5, Animals and their senses, page number 29. Okay. Now reading time. All the human beings use some organs to get information about their surroundings. These organs are known as sense organs. Likewise, all the animals too have sense organs in their body. These organs help them to know their surroundings by the sense of seeing, hearing, smelling, tasting and touching. They help them to search for food, to move and communicate with one another. All the human beings use some organs to get information about their surroundings. These organs are known as sense organs. Likewise, all the animals too have sense organs in their body. These organs help them to know their surroundings by the sense of seeing, hearing, smelling, tasting and touching. They help them to search for food, to move and communicate with one another. Okay. सारे ह्यूमन बींग कोई ना कोई ऑर्गन यूज़ करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने आसपास की इकट्ठा करने के लिए या पाने के लिए। इन्हीं ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। इसी तरह से एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये उनकी हेल्प करते हैं चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, जैसे सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। दे हेल्प देम टू सर्च फॉर फूड। वो इसकी हेल्प लेते हैं खाने की तलाश के लिए, इधर उधर जाने के लिए या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातें करने के लिए। सेंस ऑफ स्मेल। Generally dogs have a nose which is about 100,000 times more sensitive than human beings. They are widely used for security purposes. Ants smell with their antenna. It helps them to search for food and finding the directions. Snakes and lizards smell with their tongue. They flick their tongue to smell. डॉग्स के पास नोज होती हैं जो कि 100,000 टाइम्स सेंसिटिव होती है ह्यूमन बींग से और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं डॉग। आंट अपने एंटीना से स्मेल करती है और ये हेल्प करता है उनको उनके खाने की तलाश के लिए और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंटीना। स्नेक्स और लिजर्ड टंग से दे फ्लिक देयर टंग, वो अपने टंग को फ्लिक करते हैं कुछ भी चीज़ें स्मेल करने के लिए, कोई भी चीज़ स्मेल करने के लिए। द सेंस ऑफ स्मेल इन मोस्ट बर्ड्स इज नॉट हाईली डेवलप्ड बट देयर आर सम बर्ड्स दैट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। Vultures locate flesh of dead animals, decaying meat, etc. as their food with their help of their sense of smell. बहुत सारी बर्ड्स में सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जिनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है, जैसे वल्चर को डेड एनिमल्स या मतलब डिकेइंग मीट, जो मीट सड़ रही है उनको खाने के लिए उनको दिखती है इसी सेंस ऑफ स्मेल से, उनको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर मीट है। नाउ सेंस ऑफ टच। We sense touch with the help of our skin, but some animals like cats have special sense organs in their body. They use their whiskers to feel the changes in the air. They also use them as hunting tools. Most insects like bees, flies, butterflies, spiders and cockroaches have antennae on their heads. The antennae help them to detect sounds in the air and hide themselves from enemies. हम टच फील करते हैं मतलब सेंस करते हैं कब? अपनी स्किन के थ्रू। लेकिन एनिमल्स जैसे कि कैट, इनकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, ये अपने विस्कर्स को यूज़ करते हैं एयर में चेंजेस फील करने के लिए और ये अपने
अपने दुश्मनों से इन्हें बचाता है। सेंस ऑफ टेस्ट। Fishes have strong taste buds on their lips, tongue and all over their mouth. They have internal ears which can sense the vibrations created by sounds. Whales and dolphins give out sounds of very high frequencies that echo back and can be detected by them. It helps them to sense their surroundings. Fishes के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट बड्स होते हैं इनके लिप्स पर, टंग पर और पूरे माउथ में। दे हैव इंटरनल ईयर्स, इनको इंटरनल ईयर्स होते हैं जो साउंड से वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसको सेंस करने में या मीन समझने में। वेल्स और डॉल्फिन्स के जो साउंड होते हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, जो वेल्स और डॉल्फिन्स की जो साउंड्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई होती है, जो वापस दैट इको बैक एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय देम, जो वापस से सुनाई देती है और इनसे ही डिटेक्ट होती है। इट हेल्प्स देम टू सेंस दियर सराउंडिंग्स, और ये हेल्प करता है उनको उनके सराउंडिंग्स को सेंस करने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए। सेंस ऑफ हियरिंग। The bat, whale and dolphin are the kings of extreme hearing in the mammalian world. It uses echolocation, emitting ultrasonic sounds and measuring the length of time before the sounds echo back in order to locate prey. Snakes do not have external ears. They have an ear bone in their head. This bone helps them to feel the sound vibrations. Bat, whale or dolphin are the king of extreme hearing in the mammalian world. मतलब इनको सबसे ज़्यादा ये सुन सकती है मेमेलियन वर्ल्ड में। ये इकोलोकेशन यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है और मेजर करता है लेंथ, जब तक कि इनकी निकाली हुई साउंड इनके पास वापस आए, और ये होता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। स्नेक्स के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, इनमें ईयर बोन होता है, इनके सर में ईयर बोन होता है, और यही बोन हेल्प करता है इनको साउंड वाइब्रेशन फील करने में। सेंस ऑफ साइट। मोस्ट बर्ड्स हैव वेरी शार्प आई साइट. Birds of prey like an eagle can see a rat on the ground from high up in the sky. Nocturnal birds like owls catch their prey only at night. Their eyes are specially made for night vision. The size of their eyes is also bigger than ours. Most birds, बहुत सारी birds हैं जिनकी आइज बहुत तेज़ है। बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब जो चिड़िया शिकार करती है, जैसे कि ईगल, ये आसमान में बहुत ऊंचा भी रहेगी तो इनको नीचे ज़मीन पर रैट दिख जाएगा। नॉक्टर्नल बर्ड्स किसको बोलते हैं? वो बर्ड्स जो रात में देखती हैं, जैसे कि आउल, ये अपना शिकार सिर्फ नाइट यानी रात में ही करता है। दियर आइज आर स्पेशली, क्योंकि इनकी आँखें स्पेशली रात की रोशनी के लिए ही बनी है, और इनकी आँखें हमारी आँखों से भी ज़्यादा बड़ी हैं। नाउ एनिमल स्लीप। Sleep is a basic need for most animals. All reptiles, birds and mammals sleep at certain times of the day. Different animals sleep in different ways. Some animals like to sleep in one long session, while other animals like cats and dogs sleep for much shorter time. Different animals sleep in different ways. Some animals like to sleep in one long session, while other animals like cats and dogs sleep for much shorter time. Sleep बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये बेसिक नीड है, यानी बेसिक ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट।
सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स अलग अलग टाइम पे दिन में सोते हैं। डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं सोने के, और कुछ एनिमल्स तो बहुत लंबे टाइम के लिए सोते हैं, और कुछ जैसे कि कैट और डॉग हैं, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए सोते हैं। Some animals such as horses can lock their legs so that they can sleep while standing. This ability allows them to make a quick escape if a predator comes near. कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, ये अपने लेग्स को लॉक कर लेते हैं ताकि ये खड़े खड़े सो जाएं, और ये एबिलिटी इनको अलाउ करती है ताकि अगर कोई इनके पास इनका शिकार के लिए भी आ रहा है तो ये वहाँ से तुरंत भाग सके। कुछ बर्ड्स जैसे कि फ्लेमिंगो कैन इवन स्लीप वाइल बैलेंसिंग ऑन ओनली वन लेग। वो सिर्फ एक लेग बैलेंस करके वो सिर्फ वन लेग पर भी सो सकती है, फ्लेमिंगो बर्ड। लेपर्ड्स ऑल्सो हैव एन एक्सीलेंट बैलेंस, दे कैन स्लीप ऑन अ ट्री ब्रांच विदाउट फॉलिंग ऑफ। द थ्री-टोed sloth also sleeps on a tree branch. It tends to sleep in a sitting position using a tree branch for back support. लेपर्ड्स का बैलेंस बहुत ही एक्सीलेंट होता है। ये ट्री ब्रांच पर, देखिए ये ट्री के ब्रांच पर भी सो सकते हैं बिना गिरे। और थ्री-टोड स्लॉथ यानी बियर, ये भी ट्री ब्रांच पे सो सकता है। इट टेंड्स टू स्लीप इन अ सिटिंग पोजीशन, ये अपने बैठे बैठे पोजीशन में ही सो सकता है, ट्री ब्रांच का अपने बैक यानी पीछे साइड से सपोर्ट लेते हुए। मरीन मैमल्स सच एज डॉल्फिन एंड व्हेल्स हैव द एबिलिटी टू स्लीप विद ओनली वन हाफ ऑफ देयर ब्रेन स्लीपिंग एट अ टाइम। द अदर हाफ ऑफ देयर ब्रेन रिमेन्स अवेक सो दैट दे कैन स्विम व्हाइल स्लीपिंग। मरीन यानी पानी में जो मैमल्स रहते हैं जैसे डॉल्फिन और व्हेल्स, इनकी भी सोने की एबिलिटी है, लेकिन इनका आधा दिमाग सिर्फ सोता है और आधा दिमाग सोते वक्त भी जगता है, ताकि ये सोते हुए भी स्विम कर सके, तैर सके। Giraffes twist around when they lie down to sleep. The giraffe curves its long neck around like a pencil. Then it rests its head on its backside or on the ground. जिराफ जब सोने जाता है तो अपने आप को बिल्कुल ही ट्विस्ट कर लेता है, यानी मरोड़ लेता है। द जिराफ कर्व्स इट्स लॉन्ग नेक, ये अपनी लॉन्ग नेक को कर्व कर लेता है पेंसिल की तरह। फिर ये अपने हेड को या तो अपने पीछे या फिर ग्राउंड में रेस्ट करने के लिए छोड़ता है। Now animals communicate. Most animals including people use body language as well as sound and smell in order to communicate with one another. Here are some of the ways in which animals express themselves. बहुत सारे एनिमल्स और लोगों को इंक्लूड करें तो यूज़ बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज साउंड एंड स्मेल। तो ये अपनी बॉडी लैंग्वेज, साउंड और स्मेल को यूज़ करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। यहाँ पर कुछ वेज हैं जैसे जो एनिमल्स एक्सप्रेस करते हैं। Most animals communicate by smell. They release pheromones to send messages to others. Pheromones play an important part in reproduction and other social behavior. They are used by many animals including insects, moles, deer and even humans. Bees dance when they found nectar. The scout bee dances in the hive and the dance directs other bees to the location of the nectar. Dogs stretch their front legs out in front of them and lower their bodies when they want to play. Hyena makes a mad laughing sound that other hyenas follow while hunting. Honeybees perform a special dance step called waggle dance to tell other bees where the food is. बहुत सारे एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं स्मेल के थ्रू। ये एक फेरोमोन्स रिलीज
करते हैं अपने मैसेजेस दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फेरोमोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड अदर सोशल बिहेवियर। फेरोमोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रिप्रोडक्शन के साथ साथ और भी सोशल बिहेवियर में। ये बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें इंसेक्ट, मोर, डियर और यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। बीज यानी मधुमक्खी डांस करती है जब उसको नेक्टर मिल जाता है। स्काउट भी अपने हाइव में ही डांस करती है एंड देन डांस डायरेक्ट अदर बीज, और ये डांस डायरेक्ट करते हैं अदर बीज को लोकेशन फाइंड करने में कि नेक्टर कहाँ है। डॉग्स अपने फ्रंट लेग्स यानी डॉग्स के जो आगे के 2 लेग्स होते हैं उसको स्ट्रेच करता है दूसरे डॉग्स के आगे इन फ्रंट ऑफ देम एंड लोअर दियर बॉडीज, और अपनी बॉडी को लोअर करता है, नीचे करता है जब उसे खेलना होता है। हाइना मेक्स अ मैड लाफिंग साउंड दैट अदर हाइनास फॉलो। हाइना एक मैड लाफिंग साउंड क्रिएट करती है जो दूसरे हाइना उसको फॉलो करते हैं जब वो हंटिंग पर रहते हैं। हनी बीज परफॉर्म करती है एक स्पेशल डांस जिसको कहते हैं वेगल डांस, ताकि वो दूसरे बीज को भी बता सके कि खाना कहाँ है। ओके, इन दिस वे एनिमल्स एंड देयर सेंसेस चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई होप you have understood this chapter. Read it once again by your own and try to understand it again. Okay.